Yes, sir. Yes. So you will be able to solve all those questions. जो हमने 3 ही क्वेश्चन किए थे effectively, right? 5 digits, following 5 digit number using exactly all 5, exactly 4 and exactly 3 digits. यही थे ना? Right? So in general, any question can be solved by using FPC. But there are certain situations wherein a part of FPC reappears. So we say that they are a part of predefined structures. There are such structures which will repeat when you are counting in a certain manner, and we call them predefined structures. I'm sure you would have heard of them. They are basically NPR, NCR, N factorial and N power R. ये हैं चार. N factorial, N power R, NCR and NPR. ठीक है? These basically help us to quickly calculate or count the people. Rather than using an FPC recurringly, we could use these predefined structures and find our answer quicker. So, can somebody tell me? ये तो बता दिया इसने. What is n factorial? N factorial? सर एक्चुअली मैंने टॉपिक कभी पढ़ा नहीं है तो मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है. हाँ ठीक है. किसी को पता है n factorial क्या होता है? सर क्रूड मीनिंग पता है सर. क्रूड मीनिंग ये है कि जो नंबर है n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल ले लो तो उसके पीछे जितने भी नंबर है वो नंबर सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1. भी जितने भी छोटे नंबर है उसको मल्टीप्लाई. हाँ तो छोटा तो 5 के रिस्पेक्ट में -4 भी है. तो नेचुरल नंबर्स का up to प्रोडक्ट होता 1. है पहले. Yes. So factorial is basically the product of all the natural numbers from 1 till that number. So 1 factorial will be 1 itself. 2 factorial will be 1 into 2. 4 factorial will be 1 into 2 into 3 into 4. 10 factorial will be 1 into 2 into 3 until you keep on multiplying till 10. Clear? Factorial is represented by an exclamation mark. Yeah. Give me a second. चलो ठीक है. So it is ideal that you remember these factorial values until 10 factorial. ठीक है? 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6. हाँ करो ना calculate. I'll start with 0 factorial. By the way, 0 factorial is defined to be 1. Although ऐसा लगेगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसको सॉल्व कर लिया जाए. 0 factorial is defined. So definition is 1. 1 factorial is also 1. 2 factorial will be 2. 3 factorial. Can I say it is 3 into 2 factorial? Can I say that? 2 factorial I already have. इससे ऊपर वाला. So 3 into 2 is 6. 4 factorial. Can I say it is 4 into 3 factorial? ऊपर वाला. So 6 into 4, 24. Are you getting this? 24 into 5.
120. 120 into 6 720. and so on. ठीक है? 10 factorial तक ideally you should remember, but this is factorial. I hope everybody is clear about this. ठीक है? इसको हम use कब करते हैं? Now, do you remember the first question we talked about, in how many ways the digits 1, 2, 3, 4, 5 can be rearranged to form a 5-digit number? Right? इसका आंसर क्या आया था? 120? 120 आया था आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? कैसे आया था? That I could only count the number of numbers starting with 1 and then multiply that by 5 because all of them will be equal in count. The kahani will be the same. So I will say 5 into the number of numbers starting with 1 that look like this. In this, I could count the numbers that were starting with 2 and multiply that by 4. Remember? In these three, I could count the numbers that were starting with 3 and multiply that by 3. In these two spaces, I could count the numbers starting with 4 and multiply that by 2. And finally, there is only one number left here, one digit left here. So this became the answer. Do you remember? 5, 4, 3, 2, 1. And this product itself is nothing but 5 factorial. So, after looking at this, you tell me, when will you use n factorial as an answer to any counting question? Sir, when repetition is allowed. Repetition allowed थी इसमें? When repetition is not allowed. हाँ, मतलब no repetition, ठीक है. और Sir, no repetition, no condition और. what do you mean? तो मतलब बस कि 4 लेटर दे रखे हैं, 5 लेटर दे रखे हैं, उन सबको अरेंज करना है नो रेपिटेशन के साथ, सारे 5 लेटर्स को यूज करके. कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई एक नहीं आएगा या फिर वो नहीं आएगा या फिर डी डबल आएगा, ऐसा कुछ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए. राइट, तो इसको मैं ढंग से बता देता हूँ. You can use n factorial when you have n different things to be placed at n different places. यहाँ पे क्या था? 5 different digits to be placed at 5 different places, and hence the answer was 5 factorial. ठीक है? If let's say you have 7 friends and you booked 7 seats in a theater, in how many ways can they be seated? Find the count of ways in which they can be seated. It will be 7 factorial. 7 factorial. Why? Because friends, every friend is unique. It's a different friend. And all the seats in the theater are also different. Right? Right? Okay. So let's say you have 4 children and 4 dairy milk 10 rupees chocolate. In how many ways can these 4 children get 1 chocolate each? 4 factorial. It is not 4 factorial. Why? Yeah. Why? So it's the same The factorial, chocolates are all get same. one. Because all these chocolates are same. These are not different things. Okay. Although the children are different, yes, definitely, but the chocolates are not different, and hence the answer is not 4 factorial. Think about this. 4 चॉकलेट हैं, 4 बच्चों में देनी है. एक ही तो तरीका है, एक एक चॉकलेट दे दो. Logically, are you getting it? But अगर चॉकलेट डिफरेंट है, तो you can say chocolate 1, chocolate 2, chocolate 3, chocolate 4, या फिर chocolate 2, chocolate 1, chocolate 4, chocolate 3. दिख रहा है यहाँ पे arrangements possible हैं. Only when they are different. Got it? Got it? ठीक है. Let's say you have 6 chairs and 4 people.
In how many ways can these 4 people be seated on these 6 chairs? Not 4 factorial or 6 factorial, right? Equally नहीं है ये. क्या होंगे उनके बारे में बात करेंगे अभी. But are we clear when to use n factorial? N different things for n different places. चलें आगे. Zero factorial is by definition equal to 1, and n plus 1 factorial, 5 factorial is 5 into 4 का factorial. ठीक है. Also factorial को कभी कभी ऐसे L से भी लिखा जाता है, वो L के अंदर n आ जाता है, but you wouldn't find that much, so don't worry. Factorial as an exclamation mark is enough. So you tell me, in how many ways can you make 7 students stand in a line? Seven factorial. 7 factorial, right? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना, student 1 this is one orientation, this is one way, one orientation or way of arranging them. But if I change this to student 7 and I replace student 7 with student 2, can I say this is a new way of putting them in a line, right? So what am I doing? I am saying that positions of people matters. Position matters. And that is why even if you change the position, you have a new arrangement. A change in position implies new arrangement, right? Position of people matters, or you can say the order is important. ठीक है? ठीक है? और ठीक है, बस यही मैं कहना चाह रहा था. So orientation is a number of ways, the position matters, the order matters, a different way. Change in position is a new arrangement, and hence you have a new way of arranging people. If I had asked you, on the other hand, if I had asked you something like 7 students to perform the same chemistry experiment, in how many ways can they perform the same chemistry experiment? ये examples लिख लेना, काफी interesting है. In how many ways? Huh? 7 ways. No. So one way. In only one way. Yeah, sir. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, सबको करना है. पहले स्टूडेंट से बात की, तू करेगा? हाँ. दूसरा? हाँ. एक तरीके से तो कर सकते हैं कि कर लो. सबको करना है तो 1 into 1 into 1 into 1 7 times. 1 part 7 is again 1. Are you getting that idea? Feeling आ रही है? The idea is that इस केस में क्या ये लोग S1 S7 से लेके S2 तक जाएं एक्सपेरिमेंट करने, क्या ये मैटर करता है? या फिर S1 S2 S3 S7 तक जाएं? Is that different in the objective? किसी भी ऑर्डर में जाओ आप, you are doing the objective, which is appearing for the chemistry experiment, right? So the order is not relevant in this case, and hence उसका आंसर फैक्टोरियल पे नहीं आएगा, कुछ और आएगा. We'll see. ठीक है? याद रखना, इसका आंसर था 7 factorial because different orientation meant a new way of arrangement, but here a different orientation does not mean a new arrangement, it's the same arrangement. Clear? So there's a difference in answer in these scenarios. चले आगे. So, and different things and different places. N power R कब use करेंगे? When do you think N power R will be used? अभी हुआ भी था. 1 power 7, right? One way to the power 7 because 7 times. Yes. So when can you use N power R? Repetition is allowed.
ओके ओके, नॉट बैड। जैसे वही था 5 digit number to be formed using 1 2 3 4 5। तो इसमें A B C D E को कर लेते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग A इज हाउ मेनी? 5, 5 ways। B के 5, 5, C के 5, 5. क्योंकि repetition allowed है, Yes. the number of ways is the same, and since I have to do all these steps in order to find an answer, I will multiply them. Make sense? So this is what? 5 to the power 5. Clear? अच्छा तो थोड़ा चेंज करते हैं। 4 digit number to be formed using these 5 digits। कहना से अब A B C D ही रह गया है, 4 places to be filled, and each of these places can again be filled in 5 ways each, and hence the answer is 5 to the power 4 now. So can you now tell me when n to the power r can be used? When there are n options each for r different places. When there are n options each for r different places. 5 options each for 4 different places. Now these make sense? Make sense? ठीक है. It is important that these places are different. अगर ये places same होती तो फिर n पर r use नहीं होगा, ठीक है? Different और same में difference समझ में आ रहा होगा? Different और same में difference समझ में आ रहा है कि if I'm distributing same chocolate to people, it does not matter मैंने कौन सी किसको दी, and hence number of ways कम हो जाएंगे। पर अगर chocolate different है तो कौन सी किसको गई matters, and the number of ways will increase. So try this question, guys. फोर की पावर 7। हाँ भाई देखो देखो, you have to attempt a question paper, उसमें 7 MCQs है ना? इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कैन आई डू एनी ऑफ दो 7 क्वेश्चंस, या आई विल हैव टू परफॉर्म ऑल द 7 क्वेश्चन? सारे ही 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है या कुछ को कर सकता हूँ? तो सारे को ही करना है, because not written भी कुछ करना है। क्यों? अगर मुझे नहीं आता तो और नेगेटिव मार्किंग है? I can choose to not attempt also, right? That is a choice I have, but I'm still making a choice that I will not be selecting any of those 4 options. I'll choose my 5th choice, which is I won't attempt it. कह सकते हैं? So what am I doing? For every question, I have essentially 5 options. Either choose any of the 4 given options or choose to abandon the question. Make sense? Since all these 7 questions are different and have 5 options each, the answer here will become 5 per 7. Clear? Sir, why 5? Because we are not given that we have the option of leaving the question. अब वही वाली कहानी है, it is a bit ambiguous क्योंकि explicitly mentioned नहीं है क्वेश्चन में, but इसका कभी भी 4 par 7 नहीं होगा, because the first question was कि do I have to attempt all questions? Yes, I have to attempt all questions, but I can still choose not to attempt it, right?
तो वो एक फिफ्थ ऑप्शन है मेरे पास। अगर वो बोलते कि योर क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ यू लीव एनी आंसर ब्लैंक, अगर ऐसा दिया होता एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन दैट केस द आंसर इज 4/7. Are you getting the difference? Yes, sir. So more information creates better logic. Next. Sir, Huh. why can't it be 7 power 4? Because you have 7 different questions and 5 options each. When there are 5 options each for 7 different places, the answer is 5/7, not 7/5. ये तो हो गया जो मैंने बताया था उसके बारे में बात। दूसरी कहानी, you have to attempt question 1, question 2, question 3, question 4, 5. ये 7 क्वेश्चंस। किसका डाउट था ये? अनन्या तुम्हारे था ना? 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके? 5 है। क्वेश्चन 2 के भी 5, 3, 5, 4 के भी 5, 6 के भी 5, 7 के भी 5। क्या हो गया ये? 5⁻7, not 7⁻5. So be very careful that you unknowingly or mistakenly do not answer r⁻n, rather n⁻r correctly. ये होता है। अच्छा हुआ यहाँ पे डाउट आ गया, ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 MCQ 2 थीटा। सर सो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5⁻7 या 4⁻7? 5। सर अगर ऑप्शन में 5⁻7 है ही नहीं तो 4⁻7 सही आंसर होगा, या फिर ऑप्शन में 5⁻7 नहीं है एंड फिर ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव, तो गुड फिर क्या क्वेश्चन, करें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर 4⁻7 ऑप्शन में है और नन ऑफ द अबव भी है, तो ये आंसर नन ऑफ द अबव है, 4⁻7 नहीं है। लेकिन अगर 5⁻7 ऑप्शन में ही नहीं है, 4⁻7 है और बाकी लोग भी हैं, तो 4⁻7 आंसर फिर भी नहीं होगा, फिर ये क्वेश्चन गलत है। समझो, हो सकता है वन ऑफ द ऑप्शंस इज 5⁻7 की एक्चुअल वैल्यू उसने कैलकुलेट कर दी हो, बहुत बड़ा सा आंसर, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब आंसर सिंपल ये है, सुनो मेरी बात, कि अगर वो कहता कि सारे क्वेश्चंस में एक definitive answer among those 4 choices is compulsory in order for that question to be considered to have been attempted, only then the answer is 4⁻7, else it is definitely 5⁻7, because there's no restriction on whether you should or should not attempt the question in order to be considered to have attempted the whole question paper. Something was coming up, कोई कह रहा था कुछ? यस सर, ये इसमें सर टीटा के भी ऑप्शंस है कि टीटा में कोई ऑप्शंस नहीं है? टीटा क्या होता है? टीटा होता है टाइप इन टाइप आंसर। टाइप इन टाइप आंसर की शॉर्ट फॉर्म है टीटा, which means they just give you a blank, you have to enter your answer. There is no option. तो सर मतलब टीटा के अलग क्वेश्चन होंगे जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा? हाँ, उसमें ऑप्शन ही नहीं होता उसमें। सेवन MCQ 2 थीटा। सर पर उसमें भी चॉइस तो रहेगी ना कि वी कैन लीव द क्वेश्चन। हाँ, ये दोनों टीटा क्वेश्चन है। ठीक है, यस सर। इन एक क्वेश्चन सिर्फ 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन 8 को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास? इस टीटा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के कितने तरीके? सर 2। What are those 2 ways? Sir, we can leave it or we can write the answer. Either we attempt it or we leave it. ठीक है, just give me a second.
All right. So question 8 can be attempted in two ways. Either you attempt it or you choose not to attempt. Two ways. If you attempt it, it could be correct or incorrect. That is not what we are looking for. सही होगा या गलत होगा. अटेम्प्ट करने के तरीके कितने हैं? या तो उसमें कुछ लिख दो या फिर ना लिखो. करेक्ट? टू वेज. यस, यस, नो, मे बी. Yes, sir. तो क्वेश्चन 8 को अटेम्प्ट करने के दो तरीके और 9th को अटेम्प्ट करने के भी दो तरीके. सो व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी 5 to the power 7 multiplied by 2 square. Agreed? ठीक है. Any questions, doubts in here? नहीं तो फिर आगे चलें. So n things in our places, same n number of options for our different places. ठीक है, मैंने बता ही दिया है. Now let's come on to the talk about the elephants in the room. NCR or NPR. What is NCR? It basically means that you are combined. It's C means combination, P means permutation. ठीक है, C combination, P permutation. Combination का मतलब है you are selecting slash choosing. लिख लो ये points. Selecting slash choosing. Permutation का मतलब you are concerned about the arrangement as well. In factorial की बात करते हैं. 7 people who were being placed in a row, उनकी arrangement matter करती थी, right? कि कौन किसके पीछे है and so on. तो वो permutation की बात है. ठीक है. जहां पे प्लेसमेंट मैटर नहीं करती, जैसे वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी स्टूडेंट्स में, वो कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन या चॉइस की बात है. क्लियर? नाउ ऑल्दो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दीज टू थिंग्स आर, वी विल नेवर यूज देम. नेवर. हम कभी एनसीआर एनपीआर की बात ही नहीं करेंगे. नेवर तो छोड़ो, नेवर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. 90% ऑफ टाइम वी वोंट यूज देम. वी मे टेक देयर हेल्प 10% of the situations wherein they help our work do easier. ठीक है, but we will understand NCR NPR in depth कि अगली बार ये डाउट ही ना हो कि कब क्या यूज करना है. Let's try a couple of questions before I set the pretext about NCR NPR. Try this question. Send me your answers in the private chat. चलो साथ में ही कर लेते हैं. In how many ways can 3 seats be filled if 5 people want to sit on it? कैसे करोगे? Seat 1, Seat 2, Seat 3. 3 ही सीट है, बट 5 लोगों को बैठना है. कितने तरीके हैं कि सीट 1 फिल हो जाए? 5. हाँ, 5. हाँ. So in how many ways seat 1 can be occupied by either of those 5 different people in 5 ways? Seat 2 can be occupied in 4 ways. And seat 3 in 3 3. ways. So can I say, since all these seats need to be occupied, I will multiply these number of ways and get 60 ways of them being seated. Agreed? Yes. Agreed? ये है question 1. Question 1 का भी method 1. दूसरी कहानी ये कर सकते हो. You can talk in method 2 as well. Method 2 will say that I'll talk to these people. Person 1, person 2, person 3, person 4, person 5.
अभी क्या किया था, चेयर्स के बारे में बात की थी, सीट्स के बारे में, विद रिस्पेक्ट टू सीट्स लोगों को बिठाया था। अब लोगों से बात करेंगे तुम कहाँ बैठोगे, तो पर्सन 1 के पास कितने ऑप्शन है? 3. नहीं 5. नहीं सर इधर अपने पास 3 पीपल ही है ना सर, 1 क्वेश्चन 2 नहीं राइट? 3 नहीं, क्वेश्चन 1 ही है अभी। क्वेश्चन 1 में ही 5 लोगों में से पहले बंदे के पास कितने तरीके हैं कि वो ऐसे बैठ सके 3 सीटों पे? 3 तरीके सर, 3 नहीं, The four, 4 ways. कौन से 4 वेज? sir, C1, Okay. C2, C3. To sit or And like to sit on stand. one of the chairs. करेक्ट, या तो वो इन तीनों में से किसी एक पे बैठ जाए या फिर किसी में ना बैठे। दिख रहा है? अब अगर वो तीनों में से किसी एक चेयर पे बैठ गया तो कहने से कहानी ये है कि 4 लोग बचे हैं और 2 सीटें बची हैं, करेक्ट। लेकिन अगर वो किसी पे नहीं बैठा तो कहानी ये है 4 लोग बचे हैं और 3 सीटें बची हैं, which means the कहानी is different, which means I'll have to divide this in 2 ways। ठीक है, पहला वाला क्या होगा, that either one way he does not sit or in 3 ways he chooses 1 seat। Agreed? दिख रहा है? यहाँ पे पूरा FPC लगा सकते हैं। I will encourage you to do this, you will definitely get the same answer, 60 ही आएगा इसमें। But given the question, there is one particular way which is faster than the other one. Definitely choosing the chair method is easier, right? But इसको भी कर लेना, कर लेना। Now let's talk about question 2. Method 1. You have, क्या question है ये? In how many ways can 3 people be seated if we have 5 chairs? 3 people, 5 chairs. So let's talk about chair 1, then chair 2, 3, chair 4, chair 5. In how many ways can chair 1 be filled? Sir, 4. 4. या तो इन तीनों में से कोई एक बैठ गया या फिर कोई नहीं बैठा, ये खाली रह गई। तो अगर कोई यहाँ बैठ गया, कहानी है 4 chairs and 2 people remaining। बट अगर कोई नहीं बैठा तो 4 chairs and 3 people remaining। कहानी डिफरेंट है। अगेन FPC में एक कहानी would be 1 way here and 3 people can be seated। As you can see, this FPC is going to take time। So let's see if method 2 can come to the savior, wherein I talk to the people। In how many ways can person 1 be seated? How many ways can person 1 go and sit? 5 5. ways. 5 ways। कोई भी 5 में से कोई एक चेयर पे बैठ जाओ। फिर सेकंड पर्सन 4. 4, थर्ड पर्सन 3. 3। This also is coming out to be 60 ways। Make sense? हाँ जी। Can you explain the first? Can't someone stand again if 3 people have to be seated? So there should be 6 ways, no? Say that again। Method 2. हाँ हाँ। So 5 chairs and 1 option of standing, then it's 6. नहीं इसमें क्या, in how many ways can 3 people be seated if there are 5 chairs? देखो, if I have more chairs and less people, definitely हर एक इंसान बैठेगा। समझो, पहले वाले केस में लोग ज्यादा थे तो डेफिनेटली 2 इंसान खड़े ही होंगे। Are you getting it? Yes, sir. अच्छा, any other question? Anyone? Sir, can you please explain the first method again? सर This one? Yeah, sir. Yes. So the idea here is that I will fill the chairs with these people rather than asking people where they're sitting. Method 2 was asking the people where they're sitting. Method 1 was filling the chairs. Now chair 1 can either be kept empty, और वो 3 लोग शायद इन चारों में से बैठे होंगे किसी चेयर पे, या फिर chair 1 could be filled by either of these 3 people and बाकी दोनों लोग इन चारों में से किसी चेयर पे बैठे होंगे। Since both these have different कहानी, I will differentiate into 2 methods। I will FPC में जो करते थे डिवाइड, वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है? Okay, sir. फिर इसमें आगे फिर कहानी आगे चलेगी कि सेकंड चेयर कुड आल्सो बी एम्प्टी और द सेकंड चेयर कुड हैव एनी ऑफ दोस 3 पीपल। तो ये कहानी FPC की लंबी चलने वाली है। सेम यहाँ पे भी था मेथड, इसमें मेथड 2 लंबा था, इसमें मेथड 1 लंबा है। हाँ बोलो। मेथड 2 में आपने ये चीज तो कंसिडर करी नहीं कि कौन सी चेयर वैकेंट रहेंगी।
हाँ तो उसमें फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि हमें नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। हमें पता है डेफिनेटली हम्म 2 चेयर्स तो वेकेंट रहने वाली है, यही वाला है ना 5 चेयर, 2 चेयर्स वेकेंट रहने वाली है। अब पर्सन 1 के पास 5 ऑप्शन है ना, लेट्स से उसने चेयर 2 चूज कर ली, ठीक है, चेयर 2 इज ऑक्यूपाइड, पर्सन 2 ने चेयर 1 कर ली, पर्सन 3 ने चेयर 3 कर ली, तो चेयर 4 and 5 आर ऑक्यूपाइड। But while talking about these 5 ways, I am considering all options. समझो मल्टीप्लिकेशन क्यों होता था? बेसिक्स ऑफ एफपीसी। And अगर पर्सन 1 ने चेयर 1 चूज करी और पर्सन 2 ने चेयर 2 चूज करी, तो पर्सन 3 के पास ये 3 तरीके हैं, C3, 4 या 5 पे बैठने के। दिख रहा है ये 3 वेज, ये दिख रहा है। अब अगर पर्सन 1 ने C1 चूज करी, इसने C3 कर ली, तो भी इसके पास 2 तरीके हैं, सॉरी 3 तरीके हैं, 2, 4, 5, दिख रहा है। तो आउट ऑफ एनी ऑप्शंस ऑफ वन पर्सन एंड सेकंड पर्सन देयर आर डेफिनेटली 3 वेज अवेलेबल, एंड हेंस वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा। सो ये वेब है, एंड इफ यू कंप्लीट ऑल दी 60 वेज, you will find that all possible options of those 2 seats being empty have been covered. Okay, sir. sir, Yes. for every question we will always have 2 methods, or there will be some kind of questions where only like, you know, one method will देखो, work. what am I? There will be definitely तो नहीं, most of the cases you will have multiple methods to approach every question in PNC majorly, but there would be one method which is better than the other, which is better than the other, and so on. It is your judgment that, you know, if you are able to think in a certain manner, probably you can do it faster. But as I told you before, every question can be solved with the FPC principle, and the FPC principle can never ever betray you. It will definitely always give you the right answer. ठीक है? और पूछो, और आराम से चलेंगे। The objective is for you to understand these things, तभी आगे बढ़ेंगे। और पूछो। सर आप जैसे 3 people and 5 chairs रखे हैं, आप अगर नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ चेयर्स बढ़ा देंगे, फिर कैसे करना है एक बार बता दो ये मुझे। अभी बताओ। 50 और 90 ऐसे 50 people and 90। नेक्स्ट स्लाइड वही है। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रही है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में? The number 5 and 3. हाँ, The number 5 and 3. दोनों के आंसर सेम है। Yeah, answer is same. आंसर सेम है, 60 वेज। मतलब 3 चेयर पे 5 लोगों को बिठाओ या 5 चेयर पे 3 को, आंसर सेम आने वाला है। Isn't it a good observation? Yeah. In general, 30 चेयर पे 60 लोग बिठाओ या 60 चेयर पे 30, आंसर सेम आने वाला है। अब ये बात करते हैं क्यों। आर यू रेडी? चले देखो, since when you had 5 people A B C D E, अगर 5 डिफरेंट चेयर्स होती तो क्या मैं कह सकता हूँ 5 फैक्टोरियल वेज थे, सिंपल एंड फैक्टोरियल। बट अब चेयर्स कितनी है? 3, राइट? चेयर्स कितनी है? 3, मतलब 2 लोग विल डेफिनेटली बी स्टैंडिंग। कहानी समझ आ रही है? So the answer, so if I put ABCDE और ABCED जो कि 5 फैक्टोरियल में तो अलग अलग तरीके हैं, इस केस में वो अलग तरीके नहीं रहेंगे क्योंकि ABC ही बैठे हुए हैं। These are effectively the same thing. So what is happening that ABCDE and ABCED are essentially the same thing for me, because if D and E are standing in some manner or E and D are standing in some manner, it's the same thing. Only ABC are sitting in the same orientation on the chairs. So what I'll do is I'll divide this by 2. Instead of writing 5 factorial, which would have shuffled these 2 people as well, I will basically remove the shuffling of these 2 people because I'm not concerned about how these people are standing. I'm concerned only about how these people are sitting. So the answer is 5 factorial ways of arranging all these 5 people in 5 different places.
and then removing the arrangements in which these people are standing, because that is not relevant to my case. Why is the removal coming by a division? Because for each orientation here, I will have 2 factorial ways of arrangement of these people. So when I have the web, I was multiplying. In this case, I have to remove the web, so I'll be dividing. How many of you understood? None. तो ये वाली कहानी है कि if I had, let's say I have, यहाँ पे लिख देता हूँ बना try. हाँ, 3 लोग हैं ABC, 3 ही लोग हैं, ठीक है, और 5 चेयर्स हैं. चेयर 4, इसको बोलता हूँ चेयर 4, X4 X5, ये है एम्प्टी वाली चेयर्स, ठीक है. नहीं, 5 लोग ही लेते हैं. सेम कहानी जो भी हमने की थी. लेट्स नॉट गेट चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, 3 चेयर्स हैं. इन तीनों चेयर्स को भरना है मुझे, ठीक है. If I do ABCDE का 5 factorial, what am I doing? I am arranging all these 5 people in 5 different places. 120 ways में इन सब के सारे अरेंजमेंट्स आ जाएंगे. उनमें से एक और अरेंजमेंट मैं देखता हूं, एक और अरेंजमेंट. क्या ये भी एक अरेंजमेंट होगा उन 5 फैक्टोरियल में से? ठीक है. अगर सिर्फ इन 2 अरेंजमेंट्स की मैं बात करूं, इन माय केस सिंस आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट द सीटिंग पीपल, वो तो एबीसी इसमें भी थे और इसमें भी एबीसी हैं, वही 3 लोग उसी 3 जगह पे बैठे हुए हैं. Effectively, these two are not 2 different ways in which these people can sit on 3 chairs for me. Yes or no? Effectively, these are not 2 different ways. ये 5 factorial में as 2 different ways count हो चुके हैं. Agreed? But these are not 2 different ways for me. These are essentially the same. Rather, if I had something like D, A, B, C, E, या फिर D, A, B, E, C, these are also 2 different ways in those 5 factorial का calculation, but still these are the same. DA भी बैठा हुआ है इस केस में, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3 पे, यहाँ पे भी DA भी बैठा हुआ है. तो अगर मैं आंसर बोल दूं 5 factorial, तो मैं आंसर will definitely be wrong. ये तो बात दिखी रही है. But how will I change that 5 factorial to the correct answer? I will remove these 2 cases when ABC are seated. I will remove these 2 cases when DAB are seated. I will remove these 2 cases when any of the 3 out of these 5 are seated on the first 3 chairs. Does that make sense? So what am I trying to do? Let me tell you. The idea here is to find an answer to a question using n factorial only. अब मुझे बताया n लोगों को n different places पे अरेंज करने का तरीका है n factorial. तो 5 लोगों को 5 डिफरेंट जगह पे अरेंज करने का तरीका है 5 factorial. उनमें से जो 2 लोग बाहर खड़े हैं उनको अरेंज करके मुझे क्या मिलने वाला है? चेयर पे तो वही 3 लोग बैठे हैं जो बैठे हुए थे. आई एम कंसर्न्ड अबाउट पीपल सिटिंग. तो ये जो 2 लोग बाहर खड़े हैं, 2 पीपल इन 2 डिफरेंट प्लेसेस में अरेंज करने का उनको तरीका है 2 factorial. पर हमें उन्हें अरेंज नहीं करना, तो वो उनको हटा दो. आंसर इज 5 factorial by 2 factorial. ठीक है. अभी थोड़ा सा और मेरे साथ बेयर विद मी अ बिट, शायद अभी क्लियर हो जाएगा. अगर ये 6 लोग होते और 3 चेयर्स, किसी ने पूछा भी था ना, अगर ज्यादा बढ़ा दो तो क्या होगा? अगर 6 लोग होते और 3 चेयर्स होती तो क्या होता? बताओ मुझे आंसर. सिक्स फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल या फिर 6 into 5 into 4. That's it. हाँ, तो अभी हम सिर्फ फैक्टोरियल से डील कर रहे हैं. इन 6 लोगों को ABCDEF 6 लोगों को अरेंज करने का तरीका है 6 factorial, राइट?
आउट ऑफ विच ये जो 3 लोग खड़े हैं, इनकी अरेंजमेंट मेरे लिए मैटर नहीं करती, कैसे भी खड़े हो क्या फर्क पड़ता है। आई एम कंसर्न्ड विद द पीपल ऑफ सिटिंग। तो इन 3 लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल। तो उस 6 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल हटा देंगे, आंसर है 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। क्लियर? क्लियर? ठीक है। इसी को एनपीआर भी कहते हैं, यही एनपीआर है। 6 people are chairs. NPR is n factorial over n minus r का फैक्टोरियल। n minus r क्या है कि 6 में से 3 पे बैठ गए, बचे हुए 3 लोगों का अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, वही तो हटा रहे हैं नीचे। गेटिंग इट? तो NPR एज अ डेफिनेशन याद करना अच्छा है। I'll tell you why. आंसर हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। NPR तो लाइफ में कभी यूज नहीं करेंगे, आंसर हमेशा ऐसे ही करेंगे। बट क्योंकि हमें पता है ये 6p3 है, अगर आंसर चॉइसेस में 6p3 दिया हो तो ऐसा ना हो कि हमारा आंसर आ जाए और हम मार्क ना कर पाए। तो आवर नॉलेज ऑफ व्हाट p is only limited to answering questions which uses p। ठीक है? क्लियर? चले आगे। चलो अब थोड़ा सा, आई डोंट नो इफ दिस विल हेल्प यू, बट देखो जब भी हमने इसको बोला था 6 people 3 chairs में, तो ABCDEF ये लोग शफल होते थे और ये भी होते थे, ठीक है। बट ये 3 सीट्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय ईच एंड एवरीवन ऑल दो 6 पीपल। मतलब ये जो आंसर आ रहा है 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, उसमें ABC भी है, BAC भी है, CAB भी है, BCA भी है, और बाकी भी हैं ACF, CFE। ये सारे लोगों की अरेंजमेंट उसमें हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ये वाले हटाए हैं फॉर ईच ऑफ अरेंजमेंट्स हियर पॉसिबल। ठीक है? ठीक है, तो क्या सीखे? n लोगों को n डिफरेंट प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका है n फैक्टोरियल। उनमें से अगर कोई ऐसी प्लेसेस हैं जिनकी अरेंजमेंट हमारे लिए मैटर नहीं करती, तो उनको हटाया जा सकता है बाय डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ इररेलेवेंट प्लेसेस फैक्टोरियल। यस? यस बोलो, बता दो, यस नो दोनों, कुछ भी कहना चाहो कह दो, लेकिन Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Sir. इन दैट केस हाँ, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। I have 5 people. So इन would पांचों it be just one way? इन 5 लोगों की एक टीम बनानी है, 5 लोगों की, तो 5 को लेना पड़ेगा, एक ही तो तरीका है। बट इसको मैं अगेन आई वांट टू एनफोर्स द फैक्ट दैट अगर ये 5 अलग प्लेसेस होंगी, सोचो इफ आई हैड क्रिएटेड 5 डिफरेंट प्लेसेस, आई वुड हैव सेड कि इन पांचों का नंबर ऑफ वेज वुड हैव बीन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता। नाउ इफ आई एम फॉर्मिंग अ टीम, डज इट मैटर कौन किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है? नहीं, which means the arrangement of people within these 5 places is not important. So I will remove by dividing by 5 factorial and the answer comes out to be 1. Clear? Yes, sir. Next question.
यही है कहानी. These 5 people could have been arranged in 5 factorial ways अगर ये चारों पांचों places अलग अलग होती, right? इधर 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 देखो, बाद में कर लेना. This person who is not a part of the team, क्या मुझे फर्क पड़ता है कि ये अरेंज कितने तरीके में अरेंज हो पाएगा? नहीं. I will remove इस person का अरेंजमेंट डिवाइडिंग बाय 1 factorial. ठीक है, क्लियर? ये हो गया. बाकी नेक्स्ट कहानी, ये चारों जो बचे हुए लोग हैं, they would have formed a team. They would have formed a team. क्या फर्क पड़ता है कि ये किस अरेंजमेंट में खड़े हुए हैं? अगर ABCD खड़े हुए हैं और अदर टीम, या फिर DCAB, तो क्या ये डिफरेंट टीम्स हैं? नहीं, टीम तो सेम ही है, लोग सेम है. मतलब इन चारों की भी अरेंजमेंट आपस में मैटर नहीं करती. सो आई विल रिमूव दैट अरेंजमेंट बाय डिवाइडिंग बाय 4 factorial. Does that make sense? Make sense? इसमें एक और, इसका आंसर क्या आ रहा है? 5. अब दूसरी तरीके से सोचो, 4 लोगों की टीम बननी है. Excuse me. तो बेसिकली मुझे एक इंसान को इस टीम में नहीं डालना, और 5 में से एक इंसान को चूज करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके. या तो A होगा, या B होगा, या C होगा, या D होगा, या E होगा. बाकी लोग टीम बना लेंगे. वही 5 तरीके इज द आंसर. अलग अलग तरीके हैं बस देखने के. क्लियर विद दिस? चले आगे. क्या पूछा? हाँ केशव, क्या लिखा था? हाँ, तो अगर ये 5 लोग होते तो 1 2 3 4 ये रहे टीम वाले, और एक इंसान जो बाहर है. 5 प्लेसेस हैं, तो these 5 डिफरेंट पीपल भी हैं हमारे पास, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 5 factorial ways. क्योंकि इंसान जो टीम का पार्ट नहीं है, इसकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती. आई विल रिमूव दिस पर्सन्स अरेंजमेंट बाय डिवाइडिंग बाय 1 factorial. ठीक है. नाउ दीज 4 पीपल आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ टीम, सो इट डज नॉट मैटर कौन पहले उस टीम में शामिल हुआ. एक बार एक टीम बन गई तो देयर अरेंजमेंट आपस में डज नॉट मैटर. इस क्लास में कौन पहले घुसा डज नॉट मैटर. ये पूरी क्लास में जो भी सारे लोग हैं इज वन टीम, एंड हेंस इनकी अरेंजमेंट भी हटा देंगे बाय डिवाइडिंग दिस earlier answer by 4 factorial, because there are 4 pieces there. So, but why will we use factorial if that sequence does not matter? क्योंकि 5 factorial कहते ही हमने उसको मैटर करवा दिया था. 5 factorial का क्या मतलब है? n people in n places can be arranged in any manner. हम शुरुआत ही वहां से करते हैं जहां पे everything matters, arrangement matters. n factorial is the first predefined structure जहां पे everything matters. वहां से शुरुआत करते करते आई एम रिमूविंग द अरेंजमेंट्स व्हिच डू नॉट मैटर. So there should be 2 ways. So can you distinguish between both of the questions? तो ऊपर में तो 5, मेरे पास 5 Just one way. Yeah. एक ही तरीका है 5 को एक टीम में. वो एक ही है. इन 5 में से अगर 4 लोगों की टीम बनानी है तो मुझे एक इंसान को निकालना पड़ेगा. अब वो इंसान या तो A हो सकता है, एक तरीके से बाकी लोगों की टीम बन गई BCDE की, या वो इंसान B हो सकता है. टीम कौन सी बन गई? ACDE. दिख रहा है? तो वो 5 तरीके हैं. Okay. Alright. So there is a difference when people are sitting on chairs versus you are being a part of a team. Arrangement and order is not relevant. ये वाली कहानी जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, ABCD और BACD is the same team. Their arrangement is not relevant. Their arrangement does not form a new orientation or the new way of creating a team. Yes, Ananya. So sir, like you said, like we have 5 people, so 5 factorial and 1 usko nikalna hai, so we'll divide it by 1 factorial. And then because the position of these 4 people who are in the team is not relevant, we'll divide it by 4 factorial. But in the previous question, like the seating one, we had 6 people and 3 seats, but we just did 6 factorial divided by 6 factorial. Because the seats, no. Listen to this. Because in that case, the seats were different. If
ए बी सी बैठे हैं चेयर 1 चेयर 2 चेयर 3 पे, दैट्स वन ओरिएंटेशन। या फिर इफ ए सी बी बैठे हैं तो दैट्स अनदर ओरिएंटेशन, राइट? दे आर सिटिंग ऑन डिफरेंट चेयर्स एंड हेंस देयर प्लेसमेंट मैटर्स टू मी। कौन पहले पे बैठा है, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे। इस केस में एबीसी और एसीबी सेम है क्योंकि वो तीनों एक ही एक टीम का पार्ट है। तो इसमें जिन लोगों को सीट कराया था उनकी सीटिंग अरेंजमेंट आल्सो डज नॉट मैटर बिकॉज दैट सीट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दैट टीम इटसेल्फ डज नॉट रिक्वायर डिफरेंशिएशन बिटवीन हु केम फर्स्ट और हु केम लास्ट। बस वही डिफरेंस है, बिल्कुल पकड़ लिया तुमने। जब सीट्स जो थे, नंबर ऑफ सीट 3 थे ना वहां पे, ये मान लेते हैं। अच्छा, इफ आई गिव यू, इसी में आई चेंज, इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन that okay, try this question. 7 people, 4 chairs. In how many ways can they be seated? सीधा ही बता दो। 7 to the power. Factorial by 3 factorial. 7 factorial by 3 factorial। पार में क्यों जाना है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑप्शंस तो नहीं है। 7 लोगों को 7 factorial वेज में अरेंज कर दिया, 4 ही चेयर है तो बच्चे को 3 लोगों को अरेंजमेंट हटा दो उनकी, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, सेम कहानी। 7 people and you need a team of 4 people. In how many ways can you create a team of 4 people? 7 factorial by 3 factorial से you were able to find the number of ways in which these 4 people could have been seated in different chairs. Now the chair का नंबर भी गायब हो चुका है। अब चेयर 1 2 3 4 नहीं है, जो भी इन 4 चेयर पे बैठेगा कैसे भी वो एक टीम का पार्ट बन जाएगा। एंड हेंस अब इन चेयर्स को भी शफल नहीं करना, उन चेयर्स को भी हटा देंगे, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। फर्दर डिवाइड दिस आंसर बाय 4 फैक्टोरियल। तो डिफरेंस दिख रहा है क्या है? सिर्फ वो 4 फैक्टोरियल का तो डिफरेंस है। डू यू रिमेंबर इसको हमने क्या कहा था? दिस वाज 7p3। यस, व्हाट इज दिस? 7c3। दिस इज 7c3। बस ये डिफरेंस है। एक सेकंड, माय बैड। 7p4, दिस इज 7c4। ठीक है, इसको लिख लो एक जगह, इन दोनों को साइड बाय साइड लिख लो। आई थिंक ये बहुत क्लियर हो जाएगा। लिख लिया? समझ में आ गई कहानी क्या ये, क्यों इनमें फर्क है? अच्छा, अगर मैं एनसीआर को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इस 7c4 को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट विल आई गेट? 7p4। तो एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल इज एनपीआर। ठीक है, क्लियर? चले आगे। So there are 5 people, arrange them in 5 factorial. Shuffling of this person does not matter, divided by 1 factorial. Shuffling of this also does not matter because they're forming a team, divided by 4 factorial. That's the answer. That is also 5c4. So whenever you do 5c4, you are basically selecting 4 out of 5 people to form a team. ये तो कर देते हैं. But could I have said you are selecting one person to be not a part of the team? It is the same thing. So whenever you are selecting some people, you are automatically not selecting the other. Automatically. Which means you cannot do something like कि 5c4 चार लोगों को select कर लिया and एक इंसान को निकाल दिया. No. 4 लोगों को select करते ही आपने एक इंसान को निकाल दिया है. And hence 5c4 is actually equal to 5c1. 4 लोगों को select करना 5 में से या फिर एक इंसान को reject करना is actually equal number of ways. ये दोनों मल्टीप्लाई कभी नहीं होने चाहिए. ठीक है.
तो just write this yellow part. Selection of R people out of N is the same as rejecting N minus R people out of N. चले क्लियर? चलो, तो वैसे तो नहीं बात करेंगे इनकी, बट NPR जिसको PN, R भी लिखा जा सकता है, इज N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल, और NCR इज N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल, और इसमें R फैक्टोरियल से भी डिवाइड हो जाता है, बिकॉज इन लोगों की भी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। ठीक है, तो NPR कब यूज करोगे? व्हेन यू आर चूजिंग R और N पीपल टू बी प्लेस्ड इन एन ऑर्डर। 5 में से 3 लोगों को बिठाना है तो एक ऑर्डर में बिठाना है। चूजिंग R और N पीपल टू फॉर्म अ ग्रुप, 5 में से 3 लोगों की टीम बनानी है, तब NCR है। टू फॉर्म अ ग्रुप मतलब यू बेसिकली चूजिंग देम। ठीक है, चलो, ये तो आंसर ही आ गया, हट हो गया। सर 1 मिनट, वो लास्ट पेज दिखा सकते हैं क्या? वो लिख रही थी मैं। हाँ, इसको यूज नहीं करेंगे हम, बस ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे इससे। सर डन है। ये मेरे पास 2 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, I have to arrange, you can see my screen, right? I have to arrange all these, कितनी है ये? 9 balls in an order. In how many ways can I arrange these balls? How many ways of arrangement? बताओ। So 9 factorial upon 2 factorial upon 3 factorial upon 4 factorial. नहीं, the answer is 9 factorial. Why? Position matters. वो तो साइना के आंसर में भी मैटर करती थी। So because तो we're ये not वो चेयर वाला leaving- लॉजिक है ना यहाँ पे। नहीं, अनन्या क्या? because we're not leaving any ball out and there is no ऐसा arrangement. अच्छा, there is arrangement but we're not discarding any ball. सर हाँ। आप यहाँ पे हर एक ग्रीन और हर एक रेड बॉल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो शायद मेरे ख्याल से 9 अरेंज कर। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये 9 n फैक्टोरियल कब होता है? when there are n different things in n different places. different places तो वहीं for sure, सारी 9 places different हैं, पर मैंने assume किया ये 9 different balls हैं। this green ball is not similar to this green ball. no, ये दोनों green balls हैं, but maybe the size is different, and hence all of these balls are different, and hence the answer is 9 factorial. सिर्फ ये difference है।
बट अगर क्वेश्चन में लिखा होता दैट बोथ दी आई हैव 2 सेम ग्रीन बॉल्स, 3 सेम रेड एंड 4 सेम ब्लैक, तब आंसर क्या होता? I would remove the arrangement of 2 green balls. इन दोनों ग्रीन बॉल्स की अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, राइट? Then I would remove the arrangement of 3 red balls, वो भी मैटर नहीं करती. And finally remove the arrangement of those 4 black balls, वो भी मैटर नहीं करती. क्लियर? उस केस में वो साना वाला आंसर होता. ठीक है, ठीक है. थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. In how many ways can you arrange the letters of this word? 6 factorial. How many ways of arrangement of the letters 6 factorial by 6 factorial by 3 factorial. 2 factorial. 3 factorial by 3 factorial or 2 factorial. 3 factorial by 2 factorial. क्यों? 6 factorial में तो ये सारे अरेंज हो जाते हैं. But I have removed the arrangement of A's, A, and the arrangement of N's. अब देखो हो क्या रहा है, ठीक है? और इसको क्लोजली देखते हैं कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. I will remove this N, ठीक है? I am removing this N and putting it here. एक नई अरेंजमेंट आ गई है, ठीक है? अब मैं उसको नहीं छेड़ रहा, जो यहाँ पे ऑलरेडी N था. I am removing that N and putting it here. एक नई अरेंजमेंट आ गई है, पर लग तो नहीं रहा. ये तो बिल्कुल वैसी थी स्टार्टिंग में थी. सोचो, अगर मैं इन दोनों n को एक्चुअली में रिप्लेस कर दूं, मुझे लग नहीं रहा कि वो अरेंजमेंट नहीं है. तो जो 1 2 3 जो 6 फैक्टोरियल में हमारे पास n और n की शफलिंग हुई थी, हमें वो हटानी पड़ेगी बिकॉज दैट डज नॉट रिजल्ट इन अ न्यू अरेंजमेंट. दैट इज व्हाई आई एम डिवाइडिंग बाय 2 फैक्टोरियल फॉर n and 3 फैक्टोरियल फॉर a. So can it be 6 factorial divided by 2 factorial? We can remove the n first. हाँ, doesn't matter. Doesn't matter. सेम ही आएगा, सेम ही आएगा. सी मैं दिखा भी देता हूँ. ये 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6 into 5 into 4 है ना. ऊपर का 3 फैक्टोरियल, नीचे का 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. And this is being divided by 2. तो 6 into 5 into 2 is the answer. 60 is the answer. Alternatively अगर 6 फैक्टोरियल by 2 करते तो क्या था? 6 into 5 into 4 into 3 और 2 फैक्टोरियल cancel. Now this is divided by 3 फैक्टोरियल which is 6. तो 6 से डिवाइड हो जाता है. ये क्या आंसर आ रहा है? ये भी 60 आ रहा है, ये भी 60 आ रहा है. Doesn't matter. कोई भी पहले कर लो, doesn't matter. सब बी एक सिंगल है तो यहाँ पे हम 1 फैक्टोरियल करेंगे या फिर बी को कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वो अकेले मतलब कर सकते हो, doesn't matter. See, 1 factorial is 1. Dividing or multiplying by 1 does not change the answer. You could have divided by 1 factorial, but it is not relevant. कर सकते हो, there is nothing wrong in doing that. Okay, so are we clear? जिनकी भी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती उनको हटा दो, खत्म कहानी. बहुत इजी है पूरा पीएनसी. सब लोगों को अरेंज करो, जो मैटर नहीं करते उनको हटा दो, जो और मैटर नहीं करते उनको और हटा दो, और जो मैटर आगे और नहीं करते उनको और हटा दो. बस ऐसे हटाते रहेंगे हम. कभी भी एनसीआर एनपीआर की बातें ना करके ऐसे बातें करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगी क्वेश्चंस. ठीक है, शैल वी कंटिन्यू? ऑल गुड? Yes, sir. चलो, लेट्स फिनिश प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स. इनकी कहानी खत्म करते हैं. ट्राई दिस क्वेश्चन. और सीधा मुझसे बात करो. अनम्यूट करो, पेन पेंसिल हटा दो, हटा दो. कुछ लिखने की जरूरत नहीं. मुझसे बात करो. कैसे करोगे इसको? पांच लोग हैं.
उनको बोर्ड करानी है बस, कितने तरीके में करा सकते हो? 27 into 26 नहीं 22 तक। नहीं, बस बोर्ड करानी है या सीट पे बिठाना है? नहीं सर, बस बोर्ड कराने से लाइक ओके डिफरेंस है ना? या सर, 2 ways. टू वेज, कौन कौन से? Sir, either they'll board it or either they'll not. नहीं, पर हमें तो बोर्ड करानी है। सर तो अगर वो नहीं गए तो फिर बोर्ड होएगी। They'll sit or stand, ना? नहीं, that five is their factorial. choice. उनको बस में घुसना है बस। 5 factorial. नहीं, सर ऑर्डर मैटर्स कि वो कौन पहले जाए कौन नहीं जाए। तुम बताओ। So 5 factorial. सर 5 नहीं सर, वन वे सर। सर Sir, वो one खड़े way. भी रह सकते हैं सर। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं वो। sir So the just one way. 28 into 27 आ जाएगा, +1 कर देंगे हम बेसिकली। नहीं, देखो पता नहीं क्या कर, सिंपल सी सोचो, दो ही तरीके हैं, या तो इसमें तो एक ही तरीका है। देखो, लोगों से बात करते हैं, पहला बंदा, उसको चढ़ाने के कितने तरीके बस में? पहले बंदे को बस में चढ़ाने के कितने तरीके? एक ही सर। एक ही वन वे। तरीका। जाओ भैया, घुस जाओ, एक ही तरीका है ना, अंदर जाके कुछ भी करो तुम। सेकंड पर्सन को चढ़ाने के कितने तरीके? वन वे। 1 थर्ड इज ऑल्सो वन वे। दिख रहा है, सबके एक एक तरीका है, सबको चढ़ाना, मतलब ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। The answer is 1 to the power 5 or 1 itself. This is one way of them boarding a bus. But if they had to be seated, तब क्या होता? फर्स्ट पर्सन के पास कितने तरीके थे? 27 में से कोई भी सीट, 27 वेज। सेकंड पर्सन के पास बचे हुए 26, फिर 25, 24, 23, 22, राइट? सॉरी, 23 तक जाएगा ये। 3, 4, 5, 6, 7 ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है? अगर उनको बिठाना होता तो देयर इज डिफरेंस। इंग्लिश समझो, बोर्डिंग का बस का आंसर है वन वे, बीइंग सीटेड इन द बस इज 27, 26, 25, 24, 23 का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अगर ये 15 पीपल इन 15 सीट्स होते तो आंसर क्या था? क्वेश्चन 1। सर 15 फैक्टोरियल। नहीं सर, तब भी तब भी 1 होता। क्यों हो जाएगा 15 फैक्टोरियल? जतिन, बोर्ड ही तो कराना है, 15 लोग हैं। वन राइट राइट सर, मुझे लगा सीट बोले हो सर आप। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने लिखा हुआ साफ साफ। राइट राइट But डेफिनेटली। why doesn't the order matter कि कौन पहले कर रहा है? क्योंकि देखो, ये जो 15 लोग हैं, ठीक है, एक बार ये बस में चढ़ गए तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे जिनको चढ़ाना था, जो 15 लोगों का ग्रुप था, वो पूरा चढ़ चुका है, अब मैं कहीं जा सकता हूँ जहाँ जाना था हमें। अब वो बस में कैसे चढ़े उससे फर्क पड़ता है? फर्क तो इससे पड़ता है कि सब लोग आ गए बस में, एवरीवन हैज बोर्डेड द बस, इसलिए मैटर नहीं करता। सेकंड ट्राई करो। तो वही 1 फैक्टोरियल होगा। नहीं सब बोर्ड अब बस है तो हाँ हाँ, बैठने का तो कुछ लिखा नहीं है सर, करेक्ट। तो 7 पीपल चढ़ेंगे, जैसे भी वो लोग बैठे खड़े हो, चढ़ने का ही लिखा है, तो बोर्ड अब बस लिखा है तो 1 फैक्टोरियल। अच्छा, डू वी एग्री? No, सर व्हाई नॉट? 15 So because Answer they नहीं। can be in either of the डिफरेंस batches. आएगा सर। हाँ, देखो, सुनो सुनो तो सही, पहले लॉजिक फिर आंसर। लॉजिक ये बिल्कुल सही बोला पूजा ने कि उन 15 में से कौन से 7 लोग गए, ये भी तो मैटर करता है पहले। तो पहले उन 15 में से 7 लोग ले लो, फिर उनको चढ़ाने का एक तरीका है। पर उन 15 में से 7 लोगों को चूज करने के भी तो मल्टीपल तरीके हैं। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो कैसे चूज करेंगे? 15C7। चूज करने का तरीका वही होता है, लेकिन हम अगेन वी विल नॉट टॉक इन दैट मैनर। हाउ विल यू टॉक? 15 factorial by 8 factorial into 7 factorial. ये अगर होते 15 लोग तो होता 15 फैक्टोरियल। उनमें से 8 पीपल आर नॉट बोर्डेड, 8 पीपल आर Yes. नॉट बीइंग चोजन। तो कहने से उन 8 लोगों की अरेंजमेंट डज नॉट मैटर टू मी।
I will remove their arrangements. Do we agree? Finally, the 7 people who are boarding, who have been chosen, they are basically a form of a group. It doesn't matter in which order they are boarding. And hence I will divide this answer by 7 factorial further. This is nothing but 15C7 itself, yes. But we will write it in such a manner. And now, basically what I've done is I have chosen 7 people out of 15. Now, ways of boarding kitne honge inke? 1 each. So this answer will be multiplied by 1 and that will be the answer. Up clear hai? Next. Sir, one way. 15 Yes, factorial. sir, one. दिल्ली से जयपुर जाना है 15 लोगों को, बस में 15 सीट है, कितने तरीके से जा सकते हैं? एक 15 factorial. 15 factorial, sir. अगर हम 15 लोग हैं तो हो सकता है अक्षत को सीट मिले C2, अनन्या को D5, लिप्सा को E6, कहने से हर एक को अलग अलग सीट मिल रही है. एवरी सीट इज डिफरेंट, एवरी पर्सन इज ऑल्सो डिफरेंट, तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट प्लेसेस, सीधा इज एन फैक्टोरियल. 15 15 15 फैक्टोरियल. नेक्स्ट. Fifteen factorial by 7 factorial. Do we agree? Yes. 15 people हैं, they could be arranged in 15 factorial ways. But since the bus only has 8 seats, the 7 people would not be seated on those 7 seats. Their arrangement is irrelevant to me. I will remove their arrangements by dividing by 7 factorial. The remaining 8 people are sitting in different seats and hence their arrangement matters. I will not remove their arrangement. The answer is 15 factorial by 7 factorial. So can you repeat the explanation? 15 people can be arranged among themselves in 15 factorial ways. Out of these 15, the first 8 will board the bus and be seated, whereas the 7 people will probably be not on the bus. So the arrangement of the 7 people is not important to me. I will remove 7 by dividing by 7 factorial. So I now have 15 factorial by 7 factorial. Can I say the remaining 8 people who are there, their arrangement matters because they're sitting on a different seat? They are already being arranged. I'll not remove that arrangement. But so they can be any 8 people out of 15, right? That has been 15 factorial में हो गया ना वो. 15 factorial में सारे combinations. पहले 8 places पे जो भी different combinations हो सकते हैं वो सारे हो चुके हैं. इसमें Okay, sir. included है वो. Okay, sir. Okay, next. बात करो, क्या लिख रहे हो? बोला था मैंने पेन So पेपर 10 factorial by 5 factorial divided by 5 factorial. हाँ, 10 लोग हैं, कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज. टीम बनानी है 5 लोगों की, तो बचे हुए 5 लोग आर नॉट इंपॉर्टेंट, उनको हटा दो, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल. अब जो 5 लोग बचे वो भी एक टीम का पार्ट है, उनका भी आपस में अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, दे फॉर्मिंग द सेम टीम, तो एक और 5 फैक्टोरियल डिवीजन में आ जाएगा. तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. ठीक है. नेक्स्ट.
बताओ क्या सोच रहे हो? बोल So बोल के 2 सोचो। into 10 factorial upon 5 factorial into 5 factorial. नहीं सर So 10 only 10 factorial by 5 factorial. नहीं So 10 factorial by 5 factorial into 2. नहीं So 10 factorial. नहीं सर 10 factorial by 5 divided by 5 factorial divided by 5 factorial. ये ठीक लग रहा है, पर ये तो पहले वाले का आंसर था। हाँ तो सर बाकी बचे 5 लोगों की भी एक टीम बन गई ना। देखो इस केस में जब 10 में से 5 लोगों की टीम बनाई थी, क्या आंसर आता था? 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। उस केस में क्या अज्यूम किया था? जो 5 लोग टीम का पार्ट नहीं है वो बाहर कुछ कर रहे हैं, हेंस उनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। क्या मैं कह सकता हूँ वो जो 5 निकल गए वो भी अपनी एक टीम बना सकते थे, तो 2 टीम बन जाती। सेम आंसर है दोनों का, क्यों सोच रहे हो इतना? तो बट अगर वो मैटर नहीं करते तो फिर वो टीम बना ली है ना इस हाँ वाले हाँ, में भी, मैं तो वो मैं मैटर एक बार करते हैं। अभी दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ये है 5 लोगों की एक टीम और ये है 5 लोगों की दूसरी टीम, ठीक है। ऑल दीज 10 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज, 10 फैक्टोरियल वेज। उनमें से ये लोग एक टीम का पार्ट है, बट इनकी आपस में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, तो आई विल डिवाइड दिस बाय 5 फैक्टोरियल। और ये 5 लोग भी एक दूसरी टीम का पार्ट है और उनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, फर्दर डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। मेक सेंस? फर्स्ट केस में these 5 people का arrangement did not matter because they were not a part of the team. Even if they were a part of a new team, it would still have not mattered because they were forming a team and not sitting in different places. तो सेम ही आंसर आता है इनका। हाँ ये बताओ, आंसर बताओ सीधा। Answer same ही होगा क्या? Since only one person is being left out. नहीं सर 11 फैक्टोरियल होगा बस ऊपर, बाकी 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू सेम हो। पहला क्या था? 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, ये था। अभी तो 11 लोग हैं तो सबसे पहली कहानी स्टार्ट ही 11 फैक्टोरियल से होगी, समझो, ठीक है। डिवाइड बाय 5 factorial. 2 5 5 की टीम बनानी है, मतलब जो एक इंसान बाहर रह गया उसका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। Okay. फिर जो 2 टीम बनी उनमें से 5 लोगों की जो एक टीम बनी उनका मैटर नहीं करता, डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड फर्दर डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। क्लियर? क्लियर? अच्छा, क्या इसी को अगर मैं 10 लिखता और इनटू 11 कर देता तो भी आंसर सेम नहीं है? सेम ही तो है आंसर। इफेक्टिवली हो क्या गया? 10 लोगों की मैंने 5 5 की 2 टीम्स बना दी और एक इंसान को चूज किया जो किसी भी टीम का पार्ट नहीं होगा। 11 में से एक इंसान को चूज करने के 11 तरीके। तो यहां से एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात आ रही है, जो मैंने स्ट्रक्चर की बात की थी ना लास्ट क्लास में, स्ट्रक्चर। अभी तक तो हम सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पे हमें पता है कि n लोग हैं, कुछ लोगों की अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, कुछ की करती है, बट द सेम थिंग्स कैन बी रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। कैसे? स्टेप 1, out of these 11 choose one to not be a part of any team. कह सकता हूं? What is step 2? Out of the chosen 10 choose 5 to form a team. Step 3, the remaining 5 will be auto chosen to form another team. Make sense? ये स्ट्रक्चर बना लिया। In how many ways can I execute step 1? 11 में से एक इंसान को चूज करने के 11 तरीके, 11 ways of calculating step 1 का आंसर। Out of 10 5 लोगों की टीम बनाने के कितने वेज हैं? 11 10c5 और वो ऑटो चूजन मतलब 1 वे। दिस इज ऑल्सो
an acceptable answer. We have used predefined structures using a step-by-step structure approach of the same answer. ठीक है, ये एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, तीनों लिख लो इस क्वेश्चन को करने के. It will provide you different ways of looking at questions. वो ही चाहिए हमें PNC में. लिख लो. यहाँ तो सिर्फ आंसर ही लिखे हुए, जैसे ये तो चलो मेथड भी है, यहाँ पे लिख लेना चूजिंग 11% एंड देन डूइंग द सेम थिंग पहले वाले में से, और ये तो हमने अच्छा ही तो पहले वाले का आंसर था. सर सर हम्म सर इसमें ना 11 ये पहले 11 फैक्टोरियल में सामने 5 लेने हैं. हम ये लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. उस केस में तुमने मान लिया है कि वो 6 लोग आउट है. ऐसे सर हमने ऐसे करा है, पहले 11 फैक्टोरियल लिख लिया सर, बाय में लिख लिया सर 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? जो मतलब सर बाहर 6 निकाले उनसे हमें कोई मतलब नहीं है. तो अभी तो फिर 5 की एक टीम बनी और 6 की एक उसके टीम बाद बनी. सर जो 6 फैक्टोरियल आएगी उनमें से एक 5 की टीम बना देंगे सर. कितने तरीके हैं? सर 6 फैक्टोरियल बाय में 5 फैक्टोरियल. नहीं, अच्छा ठीक है, ये भी कर सकते हो. सेम ही आएगा आंसर. आंसर हमारा सर सेम 11 ही आएगा, फैक्टोरियल बाय में 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. बस सेम ही आएगा. यस सर. पर वो एक्स्ट्रा स्टेप ही डाली हुई है, पहले अरेंजमेंट हटा दी, फिर अरेंजमेंट फिर से डाल दी. क्यों करोगे ऐसा? सीधा सोचो ना यार. लिख लिया, चले आगे. सर इसमें से एक बार सेकंड ऑप्शन दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए. सेकंड ये वाला? ऑप्शन क्या है? हाँ जी ये वाला. ये कह रहा है कि पहले वाले वे में जो हमने किया था, इसको हटा देता हूँ, सॉरी, ये ऐसे होगा, इसको चेंज कर लेना. ये कह रहा है कि जो पहले वाले तरीके थे जिसमें से हमने 10 लोगों में से 5-5 की टीम बनाई थी, 2 वही रखते हैं, पर साथ में सबसे पहले ये चूज कर लेते हैं कि इनमें से हटाना किसको है, इन 11 में से. तो पहले एक को हटा देते हैं 11 तरीके से. सो वैसे भी अगर हम 11 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे तो 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल ही आएगा. वो मैथमेटिक्स को यूज करके मैं लॉजिक एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है. ठीक है, दिस PNC is considered to be very mathematical, but it is actually very logical. और ये लॉजिक NCERT में तो नहीं दिया होगा, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. चलें आगे. ट्राई. बात करो. सर 0 होगा क्या? क्यों? सर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स विच इज सपोज्ड टू बी 11 और हमारे पास तो सिर्फ 10 है. 2 टीम चाहिए, एक 4 की और एक 7 की, तो 10 लोगों में से कैसे बना लोगे? यस सर. दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. सर दोनों में से एक ही टीम बनेगी फिर. नहीं, हमें तो दोनों ही काम चाहिए ना, हमें दोनों बनवानी है. ये तो दिया क्वेश्चन में. तो पर एक लोग दोनों टीम में होगा, एक पर्सन. करेक्ट करेक्ट, ये है इंटरेस्टिंग थॉट कि हो सकता है एक इंसान दोनों टीम में हो नहीं सकता? नहीं हाँ सर. हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? सर अगर दोनों टीम को एक दूसरे के अगेंस्ट खिलाएंगे तो कैसे खेलेगा? तो अगर आ गया ना, 4 और 7 के साथ कैसे अगर खेल बट सकते हैं? मेंशन तो नहीं है ना सर इसमें. अब सुनो मेरी बात. लेट्स से देयर इज एन इंटर स्कूल कंपटीशन. ठीक है, हमारे पास 10 ही क्रिकेटर्स हैं, और क्रिकेटर्स नहीं, कोई दूसरा मैच है, कोई गेम है, 10 ही लोग हैं. अब उनमें से 7 की एक टीम बनानी है और 4 की एक बनानी है. तो कह सकता हूँ कि एक इंसान दोनों में कॉमन है. इस स्कूल की कोई भी टीम किसी के भी साथ खेले, वो इंसान दोनों में खेलेगा.
ठीक है, पर हम वहां भी जा नहीं रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वियर्ड हो जा रहा है अभी। इसके लिए इसको हम कहेंगे दिस कैन नॉट बी फाउंड, दिस कैन ओनली बी फाउंड इफ यू हैव वन कॉमन पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट। Sir, 100 factorial by my 20 factorial, 25 factorial, 30 factorial, 25 factorial. 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर बनाने हैं 100 में से। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन पेपर 1, दिस इज क्वेश्चन पेपर 2, this is question paper 3, and these are remaining questions. Clear? Since I have 100 questions, these 100 questions can be shuffled in 100 factorial ways. I am basically choosing 85 questions in order to form these 3 question papers, which means the 15 questions that are remaining, unka arrangement is definitely not relevant to me. So 75 questions. 40 versus 75. So remaining 25 questions ka arrangement is not relevant to me. Divided by 25 factorial. ठीक है, wouldn't this be the answer? Sir, I think not, sir. एक second, now 3 be made out of question paper consist of, हाँ, why not? Sir, respectively दिया है sir Sir, question because respectively 3 अलग-अलग question papers बनाने हैं तो उन सब में questions repeat नहीं होंगे। हाँ, मतलब अगर यहाँ पे एक 2 क्वेश्चंस होते तो क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी सी डी वर्सेस क्वेश्चन ए क्वेश्चन बी डी सी वुड हैव बीन द सेम, एंड हेंस क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी अरेंजमेंट आपस में मैटर नहीं करती। एक पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन 1 पहले आया, क्वेश्चन 10 पहले आया, डजंट मैटर। सो आई विल रिमूव पहले क्वेश्चन के 20 फैक्टोरियल, दूसरे क्वेश्चन पेपर के 25 फैक्टोरियल, and the last question paper के 30 factorial will be removed. ठीक है, ठीक है। Please re-explain. तो मैं पहले 25 क्वेश्चंस निकालूं या फिर लास्ट में निकालूं? बात तो सेम होगा ना? निकालूं मतलब सर जैसे 25 100 में से only 70 चलेगा, लेकिन प्रेफरेबल वही है क्योंकि जो बाकी लोग है ना, ये लोग, इनकी अरेंजमेंट हो सकता है हमारे लिए मैटर करती हो, तो 25 फैक्टोरियल तो इन एनी केस हटेगा ही हटेगा। Who asked for the explanation? पूजा, 100 फैक्टोरियल मतलब 100 क्वेश्चंस कैन बी अरेंज्ड इन 100 फैक्टोरियल वेज। जो 25 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट नहीं किए उनको अरेंज करके क्या मिलेगा? फिर जो पहले क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए उनको मैं क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 until 20 दूं, या फिर क्वेश्चन 20 को क्वेश्चन 1 बना दूं। वो क्वेश्चन पेपर तो सेम ही रहा, वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। इट डजंट मैटर कि वो सेकंड क्वेश्चन था, 7th क्वेश्चन था या 20th क्वेश्चन था। आर यू गेटिंग इट? एक क्वेश्चन पेपर मुझे मिला, उसमें थे 20 क्वेश्चंस, ठीक है, और एक क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिला, उसमें भी 20 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस हमारे सेम थे, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन 1 था वो तुम्हारा क्वेश्चन 5 था, जो मेरा क्वेश्चन 2 था वो तुम्हारा क्वेश्चन 15 था। तो विल वी से कि हम दोनों ने अलग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है? नहीं, क्वेश्चन सेम ही है, एंड हेंस द क्वेश्चंस इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर, इट डजंट मैटर
कौन सा पहले या बाद में प्रेजेंट किया गया है, एज लॉन्ग एज वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर में था। एंड हेंस जो 20 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पेपर में थे उनकी अरेंजमेंट हटा दी, कैसे भी आए वो डजंट मैटर, एक क्वेश्चन पेपर बन चुका है। सेकेंड क्वेश्चन पेपर के 25 क्वेश्चन की अरेंजमेंट हटा दी और थर्ड क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चन की अरेंजमेंट हटा दी। सर हाँ सर, ये ऐसे नहीं कर सकते कि 100C20 इंटू 80C25 इंटू उसमें से माइनस करके फिर जितने बच गए C30 55 C30 उसके आगे सर बस कर सकते हैं। सेम ही आएगा, करें। ये कह रहा है फ्रॉम 100 चूज 20 क्वेश्चंस फॉर द फर्स्ट पेपर, चूज ही करने हमें, राइट। देन फ्रॉम द रिमेनिंग 80 चूज 25 क्वेश्चंस फॉर द सेकंड पेपर, देन फ्रॉम द रिमेनिंग 55 चूज 30 क्वेश्चंस फ्रॉम द थर्ड पेपर। खत्म कहानी, ठीक है। अब देखो 100C20 क्या है, 100 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल, और 80 फैक्टोरियल भी आएगा जो कि इस वाले 80 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो नीचे क्या मिलेगा 25 फैक्टोरियल, और फिर 55 फैक्टोरियल भी आएगा जो इस 55 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो इट विल बी 30 फैक्टोरियल और 55 माइनस 30 25 फैक्टोरियल। ये भी सेम ही आंसर आ रहा है। चलो ट्राई दिस। बता दो क्या लिख रहे हो, हटाओ ना पेन पेपर। 25 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो आप इसको, सिंपल कहानी। 25 चूज हो चुके हैं, 25 वेज में कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑल पेपर्स में 20 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल। यस, दिख रहा है बेसिकली इस आंसर में ये 20 25 30 से डिवाइड हुआ है, वो डिवाइड नहीं होते अगर अरेंजमेंट मैटर करती तो। क्लियर क्लियर। सो लेट्स कंक्लूड अबाउट प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स। अगर मेरे पास सर नहीं है, हाँ सर प्रीवियस क्वेश्चन बता दो जो भी बताया आपने। क्या इसमें इससे सारे ही पहले वाला सर, सेकंड वाला 10 सेकंड पेपर में क्या लिखा सर? 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये आंसर 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस वाले में सारे क्वेश्चंस में 25 30 20 इन तीनों फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आंसर विल बी 100 फैक्टोरियल बाय 25 फैक्टोरियल। सर ये कुछ रीजन वगैरह सर बताते हो क्या मतलब सर, रीजन वगैरह? रीजन यही है कि हमें अरेंजमेंट मैटर करती है। जो 25 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में हैं वो किस तरह से आए। क्वेश्चन 1 अगर क्वेश्चन 5 बना तो वो एक नया अरेंजमेंट है, एंड हेंस उनकी अरेंजमेंट हमें नहीं हटानी है, 25 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना है इस आंसर। ठीक है। So, but it's asking na in how many ways you can arrange. हाँ, So 25 से तो divide करेंगे। 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे पुराने आंसर, एक ही बात है। या फिर 25 से इनिशियली ही डिवाइड मत करो, कहानी सेम ही है, ठीक है। डोंट वरी, वो 25 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना इनफ है। Okay. So the conclusion is, if I have 9 different places and 9 occupants और इनकी अरेंजमेंट मैटर करती है, तो the answer is n factorial, 9 factorial, right? 9 different people and 9 different places. अगर 9 ऑक्यूपेंट्स है लेकिन प्लेसमेंट मैटर नहीं करती, इन 9 की एक ही टीम बनानी है, तो ये 9 फैक्टोरियल उस 9 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। आंसर विल कम आउट टू बी 1 because the arrangement does not matter. I'll remove the arrangement by dividing by 9 factorial. Clear? If there are not 9 occupants लेकिन कुछ 5 occupants हैं, तो number of ways of arrangement mattering वाले केस में 9 फैक्टोरियल में से 5 लोग चाहिए मुझे, बाकी 4 की अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा।
और अगर अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, इन 5 लोगों की भी टीम बन रही है, तो फिर वो 5 फैक्टोरियल से और डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज वो भी अरेंजमेंट हटा देंगे। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ सम्स अप द NPR NCR वाली कहानी। n पावर r हम बात कर चुके थे, n फैक्टोरियल तो इसमें एक्सटेंसिवली बहुत यूज हो ही रहा है, सो आई थिंक दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है, इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर यू वांट, मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस। और हम NPR NCR की बातें बहुत ही मिनिमम करेंगे, हम जनरली डिवाइड अरेंजमेंट हटाने की बातें करेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलें, सो बस 15 सेकेंड्स एक ही। हाँ, हो गया सब। अब एक बात करते हैं, जो मैंने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था, जो क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में सॉल्व करे थे, उनको सॉल्व करने का FPC के अलावा कोई बेहतर तरीका है क्या, वो डिस्कस कर लेते हैं। बेहतर क्या है, इट्स जस्ट अ फास्टर मेथड। खुल जाए तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? 5 different digits, 1 2 3 4 5, and I have to form a 5-digit number, right? इसको हम FPC से तो कर ही सकते हैं, कैसे? पहले प्लेस को फिल करो 5 वेज, दूसरे को फिल करो 4 वेज, तीसरे को फिल करो, एंड सो ऑन। प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर क्या कहता है? यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर एंड स्टेप्स एंड देन आई गेट द आंसर्स। कैसे करेंगे? I'll give you an example. For this one. Predefined structure क्या कहता है कि if I have n different places for n different people, the answer is n factorial. So they तो very simple, answer becomes 5 factorial. Clear? That's a predefined structure. इस केस में क्या करेंगे? When you have to make a 5-digit number using exactly 4 digits, FPC तो किया हुआ ही है, याद है ना कैसे किया था? fill A, fill B, fill C. अब predefined structure में क्या करेंगे? What kind of steps can you form in order to make a 5-digit number using exactly 4 digits? Think and tell. सर आप ऐसे आप पूछ के रहे हो सर, समझ में नहीं आता क्वेश्चन थोड़ा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, हमने FPC से किए थे, याद है कैसे किए थे? We were filling the spots. Now what I'm trying to do is taking a high level picture and creating a structure in which I can define steps instead of going with a FPC. I'll give you an example. इस केस में I need to form a 5-digit number using 4 digits. So my step 1 is to choose 4 digits to use and reject 1 digit. That is my first step. I've chosen 4 digits. अब उन 4 digits का क्या करूँ मैं? चूज तो कर लिया, अब क्या कैसे बनेगा 5-digit number? सर अभी सर उन 4 डिजिट्स में से एक डिजिट चूज करना पड़ेगा जो Exactly. Choose the repeating digit out of those 4 digits. Second step. आ गए। अब मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, उनमें से एक रिपीटिंग डिजिट है 4। तो अब क्या है? 1 2 3 4 4, ये है 5 डिजिट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? इनको अरेंज कर लो, तो इन हाउ मेनी वेज कैन आई चूज 4 डिजिट्स एंड रिजेक्ट 1 डिजिट? 5 में से 5 वेज, 5C1 5C4, 5 वेज, कुछ भी कह सकते हो, राइट? इन हाउ मेनी वेज कैन यू चूज अ रिपीटिंग डिजिट आउट ऑफ द 4? 4 में से कोई भी एक होगी, 4C1 4C3, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज दीज 4 डिजिट्स? एक्चुअली 5 है ये। इन हाउ मेनी वेज?
5 factorial upon 2 factorial. वेरी गुड, 1 2 3 4 4 ऐसा नंबर है ये। इसको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल में पांचों अरेंज हो जाएंगे, लेकिन 4 आपस में अगर जगह चेंज करेगा तो न्यू अरेंजमेंट जैसा नहीं दिखेगा मुझे नंबर, एंड हेंस आई विल हैव टू रिमूव दैट 2 फैक्टोरियल, दिस 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या है? 5c4 into 4c1 into 5 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल। ठीक So, है, but there are 4 digits, no? So how 5 factorial? क्योंकि नहीं 4 digits but I need to form a 5 digit number, तो I chose 1 digit to repeat ना, वो भी तो आएगी यहाँ पे, 5 हो जाएंगी। क्लियर? ये है एक नया तरीका ऑफ सॉल्विंग इट। अब अगर ये स्टेप्स आपने कोई भी गलत कर दी, छोटी सी गलती, तो ये आंसर डेफिनेटली गलत आएगा, लेकिन एफपीसी कभी गलत आंसर नहीं दे सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स ऑलवेज अ बैकअप प्लान, इट ऑलवेज विल डेफिनेटली गिव यू द राइट आंसर। अच्छा, इस केस में क्या करेंगे? अगेन यू कैन यूज ईदर एफपीसी और प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। एफपीसी हम कर चुके थे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अब बताओ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स के लिए हाउ विल आई अप्रोच विद द स्टेप्स? now you know what I'm talking about, right? Now tell me what are the steps that you would go with. So first we will select 3 digits. I need to choose 3. हाँ, I will choose 3 digits and reject 2 5c3. digits. 5c3, ठीक है, मैंने कर ली 1 2 3 सेलेक्ट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। तीन में से 2 रिपीटिंग डिजिट सिलेक्ट करेंगे, 3c। क्या वो ही एक तरीका है कि 2 रिपीटिंग डिजिट सेलेक्ट करें? सर और एक भी रिपीटिंग हो सकता है, मतलब या एक फिर कोई एक करें? 2 अलग कहानी है। आई विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। या तो आई विल सेलेक्ट 1 digit टू रिपीट 3 times, और आई विल सेलेक्ट 2 digits टू रिपीट 2 times। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू दिस? 3 वेज। 3 में से कोई एक ही तो सेलेक्ट करनी है रिपीट करने के लिए। इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू दिस? अगेन 3 वेज। क्यों? कोई एक डिजिट ऐसी चाहिए जो रिपीट ना हो, ऐसा देख लो। 3 वेज, यस। फिर नेक्स्ट स्टेप, 1 1 2 3 में what did I do? I have chosen the repeating digits and then I'll arrange them. In this case, I have chosen the non-repeating digit कह लो and then I'll arrange them. In how many ways can you arrange this number? सर एक डाउट है सर, बस एक प्रीवियस का डाउट है सर, एक्चुअली वो समझ में नहीं आया सर। स्टेप 2 में जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो ठीक है कि टोटली हमारे पास 3 नंबर है, 3 में से एक नंबर चूज करना जो रिपीट होगा 2 और बार। और पर राइट वाले पार्ट में सर अगेन वी हैव हाउ मेनी नंबर्स? वी हैव 3 और 4 नंबर्स। वी हैव 3 नंबर्स राइट, अगेन 3 digits. We have 3 digits, या 3 digits exactly। ये किया तो था स्टेप 1 में, कहा choose 3 digits and reject 2 digits। Yes sir, we have 3 digits। अब इनमें से we have to choose only 2 right sir जो रिपीट होंगे। We have to choose 2 जो रिपीट होंगे and reject 1 जो रिपीट नहीं होगा। इसको मैं ऐसा, क्योंकि choosing 2 and rejecting 1 is the same as choosing 1 and rejecting 2। बात की थी। Yes, selection of some people automatically implies non-selection of other people। तो इसलिए इसको कह तो यही रहा हूं मैं, choose 2 repeating digits, लेकिन ये भी कह सकता था choose 1 digit to not repeat। Okay, right। It would have been the same thing। Yes sir। ठीक है, in how many ways can you arrange these 5 people? बताओ। 5 factorial by 3 factorial। 5 factorial by 3 factorial। 3 factorial से डिवाइड क्यों करना है? Because I don't want these ones to change places, right? Even if they change places, they are not giving me a new orientation। Guys, keep your videos on यार, अब तो बिल्कुल क्लास की एंड ही खत्म ही होगी कहानी। Why do you close? अच्छा, in how many ways can you select? Can you arrange these 5 people? 5 factorial by 2 factorial 2 factorial। 5 factorial by 2 factorial। सबको समझ में आ रही है कहानी? तो आंसर है choose 5 digits 5 से 3 ways। यहाँ पे choose a repeating digit in 3 ways। यहाँ पे भी 3 ways। ये 5 factorial by 3 factorial 5 factorial 2 factorial 2 factorial। अब स्टेप 2 क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों ऐड होंगे, क्योंकि आई विल ईदर डू दिस और डू दैट। जब ये ऐड हो जाएंगे वो कहानी मल्टीप्लाई होगी इस 5c3 से। क्लियर?
सो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपली दो तरीके हैं, आइदर यू कैन यूज एफपीसी और प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर्स. In certain questions, you may not be able to use predefined structures, but the FPC will always be used in every question. Can be used in any question you want. ठीक है? Predefined ये सामने बात कर ली है. Repeat में आ रहा है. ठीक है, दिस वाज द समरी फाइनली. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. आगे जब हम बढ़ेंगे तो आई विल सी. ठीक है, एक बार थोड़ा ये बेसिक्स के मॉड्यूल देख लेते हैं. अर्लियर पीएनसी यूज्ड टू बी ओनली एन एडवांस्ड मॉड्यूल. नाउ वी हैव बेसिक्स प्लस एडवांस, इसको डिवाइड कर लिया है. सो आई विल गो थ्रू द बेसिक शीट्स एंड सी हाउ मच मोर इज रिक्वायर्ड. मेरे हिसाब से दिस इज गुड इनफ. व्हाटएवर वी डिस्कस्ड टिल नाउ इज गुड इनफ. शायद एक और बातें हम कर लेंगे और थोड़ा सर्कुलर परम्यूटेशंस एंड अरेंजमेंट्स की बातें और करती हैं, वो हम कर सकते हैं. तो we'll do that for the first half of the next class and then begin with probability in the next class also. So make sure you attempt questions from the PDF sheet. You revise today's class and the last class को फिर से revise कर लो, 2 बार कर लो, and revise today's class. And once you are done with these 2 things, you can choose to move on to online mocks practice as well. So, all right then. All the best. See you next week. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.